ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਸਕਸੈਸ ਅਕੈਡਮੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ 2, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 8.1 ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ, angle if angle A and angle B are acute angles such that cos A equal to cos B, thus show that angle A equal to angle B। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੋ ਐਂਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਐਂਗਲ A ਤੇ ਐਂਗਲ B। ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਗਲ A ਤੇ ਐਂਗਲ B ਕੀ ਆ, ਅਕਿਊਟ ਐਂਗਲ। ਅਕਿਊਟ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਸੱਚ ਦੈਟ cos A equal to cos B। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ cos A ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, cos B ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਂਗਲ A ਤੇ ਐਂਗਲ B ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ, ਐਂਗਲ A ਤੇ ਐਂਗਲ B ਦੇਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਦੇ ਦੇਤਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ C ਹੋਊਗਾ। 90 ਦਾ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ C, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ B, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ A। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ A ਤੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਲੈਣੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਥੀਟਾ ਕੀ ਮੰਨ ਲੈਣੇ, A ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਥੀਟਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊ ਆਪਣਾ H, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ P, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊ B। ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ cos ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, cos ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, cos ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸ ਅਪੋਨ ਹਾਈਟ। cos ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸ ਅਪੋਨ ਹਾਈਟ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜੇ ਥੀਟਾ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, A ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ A ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ cos A ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੇਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਓਪੋਜਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਥੀਟੇ ਦੇ ਓਪੋਜਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ B ਅਪੋਨ BC ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈਟ ਕੀ ਹੋਊਗੀ AB, ਹਾਈਟ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ AB ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ cos B ਲੈ ਲਓ, ਥੀਟਾ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਥੀਟਾ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਣਾ ਆਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਬੇਸ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਥੀਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ ਆਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। 90 ਦੇ ਫਰੰਟ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰਵ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, P ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨੂੰ ਲੰਬ, ਬੇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਧਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਂਗਲ B ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ AC ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ AC ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ H ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ cos A equal to cos B, ਇਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ cos A equal to cos B। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ BC ਅਪੋਨ AB, AC ਅਪੋਨ AB, ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ BC equal to AC। ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਹੈ, BC ਲਾਈਨ ਤੇ AB ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ, ਸੌਰੀ ਲੈਂਥ ਕੀ ਆ AC ਦੀ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਡਸ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਡਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਓਪੋਜਿਟ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲਾਈਨਸ ਓਪੋਜਿਟ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਨਸ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਕੀ ਓਪੋਜਿਟ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਓਪੋਜਿਟ ਐਂਗਲ ਵੀ ਕੀ ਆਪਣੇ A ਤੇ B ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਡਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ, ਸੌਰੀ opposite angle are equal। ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਡ ਦੇ opposite angle ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ 6ਵਾਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਕੋਟ ਥੀਟਾ 7/8, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਾਹਦੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, 1 + sin ਥੀਟਾ 1 - sin थीटा इक्वल टू 1 + डिवाइड बाय cos थीटा 1 - cos थीटा। एक तो ये हो गया, सैकंड की है cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम आप फिर की करांगे, सब तो पहले आपको की चाहिए ट्रायंगल, ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ले लिया आप। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਥੀਟਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏ ਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਥੀਟਾ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਥੀਟਾ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਸੌਰੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ 7, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਓ 8, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ B/P ਹੁੰਦਾ, ਕੋਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ B/P, ਬੇਸ 7 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ, h² p² + b², एच की आप वैल्यू फाइंड आउट करनी, पी की वैल्यू कितनी होती है अपन 64 प्लस ए कितनी होगी 49, सब्जियों में तड़के लगी जाते हैं ना। चलो कितना बन गया है 3 113, दोनों बोथ साइड की कर दो रूट कर दो, एच कितनी आ जाएगी √113, ये वैल्यू कितनी आ गई √113। ठीक है जी, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਨਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ 1 + sin ਥੀਟਾ 1 - sin ਥੀਟਾ, ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ a + b a - b ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ a² - b², ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਉਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਹ ਦੋਨੇ ਕੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਆਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਲਿਖ ਦਈਏ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ 1² - sin ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 1² - sin cos ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ 1 - sin ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ 1 - cos ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ। ठीक है, एक का तो स्केयर भी होंगे, एक ही होंगे ना। हाँ जी, हूँ देखो अगे हूँ आप सॉल्व करना, हूँ आपको की दिता हुआ साइन ते कॉस, साइन का इक्वल होंगे, साइन की होंगे P/H ते कॉस B/H, साइन ते कॉस की वैल्यू कहती P/H ते B/H। ठीक है, फिर आप हूँ की करेंगे वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यूज कि अपन आलिया वैल्यूज आई, हम तुम इतने लिख दो 1 - साइन की वैल्यू की है P/H, P कितनी है 8, नीचे क्या आएगा √113, यदा की हो जाएगा स्क्वायर, नीचे 1 - cos की B/H 7 √113 का। एक मिनट मैं चेक करना, बोर्ड च आ भी रहना है, हाँ जी बोर्ड के आ रहा है। ठीक है, वैल्यूज पुट करनी, कल समझ आ गई। नैक्सट क्वेश्चन आप इतने करते इन्होंने सॉल्व कर दो 1 - 8 का स्केयर कितना होता, मैं कल भी क्या स्केयर याद कर लिया, वो याद कर लो, अंडर रूट कटा कि कितना आ गया 113। हूँ आ की हो गया 1 - 49/113। ठीक है जी, हूँ कि इन्हों का एलसीएम लै लेंगे 113 ही आ जाएगा, कितना बन गया 113 - 64, आ नीचे कितना हो गया, इन्हों सॉल्व करोगे, यदा एलसीएम लै लिया, ये मल्टीप्लाई करती 113 - 49/113। ठीक है जी, समझ आ गया। हम तुम देखो आप की कर देंगे, इनू सॉल्व कर लो पहले एक बार 49/113 64/113, पहले नूं की चौथे ना कर लिया करो, दूजे नूं तीजे नाल। जो हम मैं पहले नूं चौथे ना कर रहा की बन गया अपना, हूँ मैं पहले नूं चौथे ना कर रहा, इधर देखो 49 113 113 गुना
ਮਲਟੀਪਲਾਈ 14 ਆ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 49/64। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 49/64। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 8। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, if 3 cot a equal to 4। ठीक है, तो आप जो cot की 4 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ 1 minus tan square a on 1 plus tan square a ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈ cos square a minus sin square or not। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ट्रायंगल वही ले लो ना, ट्रायंगल ले लो पहले तो cot 4/3। ਹੁਣ cot ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, cot ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ b/p। ठीक है, b ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਲੈ ਲਓ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਥੀਟਾ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਥੀਟਾ ਦਾ। ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਲਓ ਬੇਸ 4 ਲੈ ਲਓ, परपेंडिकुलर ले लो 3। फिर आप की करनी है एच की वैल्यू आप फाइंड आउट करनी है, पाइथागोरस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाती पी की नहीं अपनी 9 बन गई, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एच स्क्वायर 9 प्लस 16 एच की नहीं आ गई थोड़ी 25। इधर अंडरूट बोथ साइड आप अंडरूट कर रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर कर रहे हैं, एच की नहीं आ गई थोड़ी 25 सॉरी 5। एच की वैल्यू कितनी आ गई थोड़े को 5, एच की वैल्यू कितनी आ गई 5। उन्होंने अगे की है तुहानू कहंदा 1 minus tan स्क्वायर। tan की हुंदा तुहाडा, tan दसो हुण tan की हुंदा अपना p/v लिख लिया करो साइड पे p h b इधर याद रखोगा। ठीक है, फिर अपना tan की होया p/b। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇੰਨੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ 1 minus tan square a, tan ਦੀ ਵੈਲਿਊ h p ਤੇ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ 3, v ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4। ठीक है जी, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ 1 minus 3/, ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है, 1 plus 3/4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, 1 minus 9/16, 1 minus 9/16 प्लस ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ 1 ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 16 minus 9। ठीक है, अपॉन 16 ये कितना हो गया 16 minus 9 कितना बन गया 7 सॉरी हाँ 7 ही हो गया 7/16 7/16 अब प्लस हो गया। ठीक है, कितना बन गया 25। आ मैं तुहानू दस्सिया सी इत्थे इहनू कट कर दो, कितना बन गया 7/25। 7/25 वैल्यू अपनी काहदी आ गई, ये वाले पोर्शन की अपनी वैल्यू आ गई। ठीक है, हुण आपां दूसरी वैल्यू ले लो अपनी किहड़ी cos square a माइनस sin square a। ठीक है, हुण तुसीं देखो cos की हुंदा तुहाडा, हुण मैं लिखवाया ना और b/h मतलब कि 4/5 स्क्वायर। sin की हो गया फिर आना हो गया 3/5 स्क्वायर। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ, 16/25 ਮਾਈਨਸ 9/25 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ 25। ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਜੋ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ 7। 7/25 7/25 7/25 7/25 ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ
नॉट नहीं है, ये की जैसा, मतलब कि ये अपना इक्वल है। ठीक है ना जी, समझ आ गया क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन नंबर सीगा अपना 8। हम आप करते हैं अपना क्वेश्चन अगे 9। 9 ਹੁਣ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल की दिता उस एट बी, मतलब कि आह ट्रायंगल है, राइट एंगल किहड़ा देता उन्हें बी देता। ठीक है, टैन की वैल्यू देती, टैन ए कितना था 1/√3 थीटा, इनू ए लै लिया करो, मतलब थीटा या ए ना मैं तुहानूं कल दस्सिया सी। हुण की है फिर पहला आपां नूं की चाहिदा, की हुंदा टैन की हुंदा पी अपॉन बी, पी की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई √3। वही पाइथागोरस थ्योरम ला दो, कितना आ गया ये 1 प्लस √3 का स्केयर करेंगे 1 + 3 आ गया एच, बोथ साइड कर देंगे तो अपना कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को 2 आ जाएगी। ठीक है, तीनों वैल्यूज अपन आ गई, हाँ जी आ गई। तो हम आप जी वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है, वो वाली लिख लो इतने कि करनी है। चलो इदा करो, ये तुम आप ही सॉल्व कर लो। ठीक है, जो ना है मैं दस दो, मैं कमेंट कर दो। ठीक है, जो मैं मैसेज कर दो जो ना तो सॉल्व है। ये की है ए तो सी है, मतलब आह ट्रायंगल है, एक बार ए ले लो, फिर इनू की ले लो सी ले लो। ये तो मैं कंडीशन दसी हुई है कि वो बेस के परपेंडिकुलर की चेंज हो जाते हैं, ये गल तो पता ही है, तो प्रैक्टिस हो जाए। बी पार्ट की है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, ये दोनों तुम मैं सॉल्व करके मैसेज कर दो, जो तो आंसर आ गए, जो नहीं भी आया तो आप नैक्सट वीडियो के मैं तुम्हें क्या सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, इन्हें तुम नोट कर लो, इन्हें नाले तो पता लग जाओ कितने खड़े हो भी कि तुम समझ अपनी गल पै रही है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो अगे 10 इन ट्रायंगल पी क्यू आर, कहना ट्रायंगल है पी क्यू आर, ਇਹਦਾ भी राइट एंगल इन्होंने देता, राइट एंगल एट क्यू। ठीक है, राइट एंगल भी इन्होंने क्यू देता, नाल की देता उन्हें पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। कहना पी आर से क्यू आर की वैल्यू की है 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू कितनी अपनी 5 सेंटीमीटर। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਾਈਨ ਪੀ cos ਪੀ ਤੇ tan ਪੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਆ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਕਿਹਦੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂ ਤੇ ਦੇਦਾ ਹਨਾ, फिर इनू की लै लो आर लै लो, इनू की लै लो पी लै लो। ठीक है, हूँ की कहना वो हूँ जो आ दी उन्हें पी क्यू की दी है 5, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 पी आर, एक की वैल्यू कर लो, क्यू आर की हो जाए इधर हो जाएगा, फिर अपना पी आर की आ कितनी होगी अपनी 25 माइनस क्यू आर, एच की होगी 25 माइनस क्यू आर होगी। ठीक है, पी क्यू की नीति है 5 नीति है, तो आप आ भी फाइंड आउट करनी है, तो इनू भी आप सॉल्व करना है। ठीक है, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर प्लस पी कितना, सॉरी हाँ 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 पी क्यू, पी क्यू लिख लो, आर क्यू लिख लो, कन्फ्यूज नहीं होने ना। 5 हाँ कितना हो गया, हाँ आ देखो हूँ ये कि सॉल्व करना, एक तो की बन गया फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला कि बन गया है ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आ चीज़ बन गई।
ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਵੈल्यू पुट कर दो, इत्थे फिर आ ले लो 25 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई क्यू आर। ठीक है ना जी, आह गल समझ गए ना, इन्नी गल नोट कर ली। हाँ जी, मैंने एक काम करना, इतने कर दें। हम तुम देखो इनू आप सॉल्व इक्वल टू कि आ जाएगा आर क्यू स्क्वायर प्लस 25 कि 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर कि हो गया 50 हो गया माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर, आर क्यू लिख लो या क्यू आर लिख लो, कोई गल है ना, प्लस 25 सारे एक साइड कर लो ना। इतने क्या है क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर आ इधर आ जाएगा माइनस क्यू आर स्क्वायर 25 माइनस 625 कट हो गया सेम है माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 60 बट 600 निशान का माइनस का ये कट कर दो। ठीक है, जो इन्हों कट करता हूँ की बन गया फिर अगे अपना क्यू आर इक्वल टू 600 अपॉन 50 कितना बन गया है 12। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई थोड़ी 12, आह वाली वैल्यू कितनी आ गई 12। जो हम थोड़ी क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12, इतने 12 लिख दो तो थोड़ा ये की आ जाऊगा 13। एच की वैल्यू कितनी आ जाऊगी थोड़ी 13 आ जाऊगी। ठीक है, हम अपने को कितने वैल्यूज हो गई, हाँ जी हो गई 12 13 ते 5। ठीक है, हम आप कुछ भी ये फाइंड आउट कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। साइन पी देख लो कि साइन की होंगे हम वही गल दोबारा याद करो इन्हू। ठीक है, दोबारा दोबारा मैं तुम्हें बोल रहा ताकि भी तुम इनू याद कर लोगे। साइन की होंगे पी अपॉन एच, पी कितनी है अपनी 12 आ ले लिया थीटा, पी कितनी है 12, एच की वैल्यू कितनी है 13 कॉस बी अपॉन एच कितना होगा 5/13 5 अपॉन 3 अगे की आ गया टैन, टैन की होंगे हम अपना पी अपॉन बी, पी कितनी है 12 बी कितनी है अपनी 5। ठीक है जी, तीनों वैल्यूज अपनी आ गई, हाँ जी आ गई। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन हो गया सॉल्व। हम आप कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन अपना 11, हाँ जी लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो कहता कुछ अपन दी हुई वैल्यू दी हुई उन्होंने की करना आप ट्रू या फॉल्स दसनी है, ट्रू एंड फॉल्स। आंसर की करना अपना जस्टिफाई करना, जस्टिफाई मतलब कि मैं तुम्हें दसता ना एक बार बट उन्होंने दसना भी क्यों इदा होया, ये चीज़ क्यों इदा हुई है। क्वेश्चन 11 पार्ट ए ले लो, पार्ट ए ले लो the value of tan A is always less than 1। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ tan A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚ ਆਪਣੀ tan A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਲਓ ट्रायंगल बना लो। ठीक है, सी बी ए हूँ ये वैल्यूज की ली है आप कोई भी अपने को लै लो वैल्यूज लै लो हूँ वैल्यूज लै लें। चलो आ सैकंड क्वेश्चन दी लै लें कि 12 ते 5 दी हुई है ना, हाँ यही लै लें सैकंड क्वेश्चन की वैल्यूज लै लो। हूँ जो आप पहला भी सॉल्व किया 12 ते 5 आ कि नाम पाइथागोरस ला लो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगा दी कितना हो गया एच स्क्वायर 144 25 एच कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। मैं थोड़ा शॉर्ट करता जो नहीं पता लगे उन्हें फिर भी पूछ लो। वैसे हम इन्ने क्वेश्चन आप कर ले तो ये चीज़ ईजिली समझ आ गई होनी है। तो आ वैल्यू कितनी आ गई अपनी 13 आ गई। ठीक है जी, ये वैल्यू अपनी 13 आ गई। हुण तुसीं देखो आप टैन को इत्थों लै लैंदे एक बार थीटा किहड़ा ले लिया आप आ लै लिया जो हम टैन की होंगे पी अपॉन बी होंगे जो हम थीटा आप ये वाला लै लिया तो पी की वैल्यू कितनी है 12 बी की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, इसका मतलब वैल्यू तो अपनी एक तो वड्डी होगी, एक तो वड्डी होगी ना
जो 12/5 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊ 2.4 ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ। मतलब कि ये कंडीशन तो अपनी की होगी, मतलब कि जो उन्हें गल बोली है ना वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लैस दैन 1 की हो गया गलत हो गया। हूँ मैं अगे भी प्रूव करवाना हूँ तुम थीटा इनू ले लो tan कहता P/P थीटा कि लै लिया C लै लिया पहला की लिया आप A लिया सी। हूँ तुम ये सॉल्व करो P कि हूँ अपनी P कि बन जाओ नीचे वाली बन जाओ ना क्योंकि थीटे के सामने वाला कि होंगे परपेंडिकुलर होंगे 5 हो गया आ कि हो गया फिर 12 हूँ 5/12 ये अपने वन तो छोटी आ गई। हाँ जी छोटी आ गई पर यह मतलब यह तो नहीं होया ना फिर अपनी कंडीशन सही है कि नहीं अपनी सही नहीं जो आप एक तरीके तो कर रहे हैं वो तो अपनी आ रही है बट दूजे मैथड नाल की आप दूसरे तरीके तो लै रहे हैं अपनी वैल्यू की आ रही है सही नहीं आ रही तो करके कंडीशन की हो गई अपनी ये गलत हो गई। ठीक है राजे आ गए ना समझ। चलो हूँ यदा आप बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट के की दिता उन्हें sec A इक्वल टू 12/5 for same value of angle A। ठीक है हम आप ये कंडीशन करनी है फिर वही ट्रायंगल ले लो की होंगे की होंगे H/B होंगे एक नहीं ले ली 12 B की नहीं आ गई 5 तो फिर अपनी हूँ जो इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम लगावांगे आ गया हाइपोटेन्यूज आ गया ना अपना न्यूज आ गया है ना यदा कि आ गया H² बस ठीक है लोड़ ही नहीं अगे बनाने की भी नहीं लोड़। हूँ तुम देखो उन्होंने की पूछा सी फॉर सेम वैल्यू ऑफ एंगल ए आ गया है ना उन्हें अपने यही गल पूछी थी ना हूँ की है कदे भी किसी कंडीशन की होंगे जी सब तो वड्डी वैल्यू कहती होंगी है एच की वैल्यू होंगी ना हाइपोटेन्यूज की सब तो वड्डी वैल्यू होंगी है। ठीक है हूँ जो आप सॉल्व करांगे तो फिर ही अपनी ट्रायंगल मारे परपेंडिकुलर की वैल्यू की आऊगी तो छोटी ही आऊगी। हूँ किमें छोटी आऊगी करवाई देना एच की नहीं अपनी 12 पी के नाम का दिता नहीं आ भी लगता 144 माइनस 25 नंबर पी कि आ जाएगा 119। हूँ तुम देखो अब 12 तो छोटी बन रही है किमें पता लग रहा है अपन देख के पता लगता है क्योंकि H का स्केयर कितना होंगे तो 12 का स्केयर कितना होंगे 144 होंगे जो फिर तो होंगी पर यह 144 तो की छोटी है तो करके की वैल्यू की 12 तो अपनी की है ये छोटी है। ठीक है तो फिर की हो गया ये अपनी कंडीशन की होगी ट्रू होगी। ठीक है ये की हो गया अपनी सही होगी मतलब। चलो नेक्स्ट की कहता cos A C है cos A is abbreviation used for cosecant of angle की कहता एब्रीवेशन की मतलब जो आप पूरा है ना इनू आप शॉर्ट फॉर्म की लिख रहे हैं आप एब्रीवेशन आ लिखते हैं ना cos A की एब्रीवेशन की होंगी है हूँ cos A की एब्रीवेशन की होंगी है कोसाइन होंगे। ठीक है तो फिर आ कदी हुई एब्रीवेशन ये कहता कोसेक दी होगी ये फिर यदा मतलब कि यदि एब्रीवेशन तो आ होती है बट इन्होंने की दी आ दी है ये कंडीशन की होगी अपनी फॉल्स होगी। ठीक है जी आ गया ना समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डी cos cot A is the product of cot and A प्रोडक्ट की कहता मल्टीप्लाई वो कहता ये दोनों एक दूसरे मल्टीप्लाई है cot A ये दोनों मल्टीप्लाई है पता ना अपन मल्टीप्लाई है कि नहीं दसो नहीं मल्टीप्लाई क्योंकि cot A की एक वैल्यू है हूँ जिम्मे मैं cot 45 ले देना मल्टीप्लाई तो नहीं था A की वैल्यू कितनी आई है 45 अपनी ट्रायंगल है ये एंगल कितना देता उन्हें 45 देता है cot बन रहा है ये तो उसकी वैल्यू होगी फिर ये मल्टीप्लाई तो नहीं तो करके ये भी की होंगी है कादी वैल्यू होंगी है एंगल की वैल्यू होंगी है बट एक प्रोडक्ट नहीं होंगे तो ये कंडीशन भी की होगी उसकी
गलत हो गई, जस्टिफाई करता ना मैं तुहानू दसता है। ठीक है चलो लास्ट ई साइन थीटा 4/5 फॉर सम एंगल थीटा। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ p ਅਪੋਨ h ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਨ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ 4/5। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ h ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲਾ ਲਓ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਬਣਾ ਲਓ ਇਹਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਚਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਸੌਰੀ 3 ਹੈ, h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ 3, p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੀ 4। ਲੈ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋਊ, ਆਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ 8.1 ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ 8.2 ਲੈ ਕੇ ਵਿਦ ਈਜ਼ੀ ਕਨਸੈਪਟ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਸੌਖੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਖੁਦ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਉਹ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੀ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਹੀ ਬਚਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ।